viewers, those who are in library, go hit them, ask them. No one is going to show their attitude, which we all presume that what if they don't answer. Never hesitate. Ask. हिंदी में बात करना है, हिंदी में बात करते हैं. However, सोर्स विचारायचं का सोर्स we decide कसं करू. अगर first year वालों को जाऊ बोल, काय कसं start करू. जयराज सबस्क्रिप्शन विचार कोणता होता खरंच सिरियसली कन्फर्मेशन काउन्सिल मेंबर तुम्ही I'll give you my perspective toward this question. I was a Mano user since my second year. For subjects like pharmacology, I felt I should switch to some other platform. So I used even PrepLadder. For Pharmac, I used all three sources: PrepLadder, Maro, as well as DAPS. But if you all ask me, I'll give you I use my कोणतं honest करायचं बघ. opinion. Follow whichever source you all want. It is going to be sufficient. I personally switched to Maro later for pharmacology because I wanted one complete source for all subjects. So I switched to pharmacology. For you all can use any platform. For my if I have to suggest, I'll suggest Maro because it has everything. The question bank is excellent. I'll never have any doubt. After solving Maro modules, I used to be confident enough कि अभी इसके आगे कुछ भी नहीं पूछ सकते and this will be sufficient. So if you all are DAMS users, continue using DAMS, but never stop. If you all feel that your friends are doing better by using some other platforms, it is just because they are reading more. There is no difference in any platform. So if you all are using DAMS, use DAMS. If you all are using PrepLadder, use PrepLadder. If you all are using Maro, use Maro. But stick to one source for one subject. I was very particular that ये subject तो मैं इसी platform से करती. I never used two other than pharmacology. I never used two platform for any subject. For short subjects, I switched to DAMS because that was more concise for revision. But for rest all the first year subjects, second year subjects, third year subjects, I was using Maro. So the key is to solve MCQs. Your exam is going to be about MCQs. If you all are not planning to solve MCQs, it is of no use. What is the point of even reading if you all cannot solve it? So solve MCQs as early as possible. Second year is the best year to start reading standard textbooks. For first years, PDC is very important because no matter whichever platform you use, no book is going to be sufficient. You need to use PDC because those are going, this year, current year INICT, they had asked, everyone is suggesting to solve PYQs. But what about the questions which were 15 years back? Those were the questions which were in this year's INICT. You all cannot prepare for 15 years PYQ because it is huge. For completing 5 years PYQ, it will take around 2-3 months. So solving 15 years back is something that is not humanly possible. So you are supposed to read standard textbooks in your particular year. For first year and second year, it is very important to address your standard textbooks. For third minor, I'll suggest to read Khurana, Park. ENT, you all can read Hingra or Manisha Budhiraja ma'am is great. Absolutely great. She teaches ENT like no one else. She covers anatomy part. So if you all are Maro users subscribing ENT, go ahead with it. You don't even need to read Hingra. That is how concise ma'am has taught you. But for rest of the subjects, Khurana is must because if you all are planning for INICT, there are going to be images, there are going to be instruments which are never taught in any platform. So if you all are planning for INICT, which I will always recommend, INICT is a much fetchable exam than NEET PG. If you see in ranking, if you all are in mid-range, that is 630,
Your rank in NEET will be around 1000 to 1500. The same when you come to INICT, if you get 150 questions correct, you are in top 50. The same 150 in NEET won't even fetch you a rank of somehow 5000. It is the difference of fear. No one will address you this. For me, when I personally asked if I should aim for INICT, many of them recommended no because the number of seats is 800. Just 800. Central institutes offer only 800. That too for open, it is going to be 400. And for clinical subjects, it will come around 125 seats. It is not about the seats you are targeting. It is about the number of correct questions. If you are stronger with your base, correcting 150 questions is very easily possible. It is 150 questions. You are not targeting for 125 seats. You are targeting for 150 correct questions. It is very much possible. If you are planning for NEET, 150 won't even fetch you a government seat for radiology. Higher NEET. 150 correct and you don't get radiology. And 150 correct in same INICT will get you a central institute. Why not aim for AIIMS? What is stopping you? Is it because we are from a private college? There's nothing to be ashamed of. I was sitting here, I had the same dream. I shared the same seats like you all. It is very much possible. If I'm a 5-digit ranker too. The only difference was I was consistent myself. I had a dream that I will not stop here, I'm going to excel. It started from मुझे बस MBBS करना है, मुझे बस PG करना है, मुझे बस दिल्ली से PG करना है to I just want to do it AIIMS. I just missed it by 2 correct questions. But why not you all can make it through? What is stopping you all? You all are reading the same books like others are doing. Nothing should stop you from doing that, dreaming that. If you all dream for a lower aim, you will never reach there. Dream like a mad cat, mad. Nothing is going to make any difference. If not the stars, you'll reach somewhere, some better place than this. Believe me, the only thing which helped me during the exam was, I'm at the worst place now. इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है. इधर से बस आगे ही जाना है. Yes, because government students have the pressure. कि अभी गवर्नमेंट में है, इधर से आगे किधर जाएंगे? यार अपने पास तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बोल सकते हैं यार प्राइवेट कॉलेज से हम लोग इतने अच्छे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं. The setbacks we have already experienced those setbacks. You just need to excel yourself. अब तुम लोग हंस रहे हो. It is very much. हाँ मेरे लिए भी ऐसे ही था. मैं भी हंस ही रही थी. जब मुझे कोई बोलता था ना यार तू एम्स के बारे में सोच रही है, तू प्राइवेट कॉलेज से है. ऐसे ही हंसते थे लोग. But you all make the difference. You should make the difference. There is nothing different from you and me. I just made one thing. यहाँ पे नहीं रहना है. इसके आगे लाइफ में जाना है. It just takes 6 hours. 6 hours each day. It is very much possible. 6 hours. In 24 hours, if you all cannot spare 6 hours, you all won't succeed. I'll say this myself. We are from an institute which is just budding. To make your resume strong, you need to work hard. I'll give you hard facts. USMLE didn't have a recognition for a long time. Just recently, it has recognized our college. If you all are planning for USMLE, you need a very strong resume. That is what quizzes help you. If you all are thinking कि यार मैं आगे कुछ कर लूँगी, PG होने के बाद कर लूँगी, in PG you don't have the time to make your resume. And your resume is going to play a very key role. If you all are going to work in any private institute, you all need a strong resume. That is only possible if you all go explore the world of quiz. If you all start research. Because you all have CME pattern, you all think that it is very difficult to even try for quizzes. It is not. Government students have the same pattern like you all. Why are they exploring the world? Why? Because they have no fear. They want to excel. They'll not stop here. We cannot have that setback forever in our life कि यार private college से आया. It is you yourself giving your label कि हम लोग private college से आए हैं. Surya sir stood here. Sir said me I'm counting on you. That very line stuck with me throughout my journey. Whenever I was in
सर ने किया है तो मैं भी कर दूँगी. And it is very much possible. If I have done it, you all can do it too. You all just need that extra push. And it is only yourself. You all need that extra step each day. You all cannot expect कि एक साल में internship में निकाल लेंगे हो जाएगा. It is not possible. I'll give you hard facts. Government कॉलेज वाले यही करते हैं. जो बहुत excellent students होते हैं वो लोग निकल जाते हैं. वो लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए पहले निकल जाते हैं. जो बीच वाले रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग लाइक मजे करते हैं. And they are like ठीक है इंटर्नशिप के एक साल में पढ़ लेंगे. नहीं होता. You all cannot study 19 subjects in a year. Because what we couldn't do in 4.5 years, what are we possibly going to do in a year? But if you are someone who is consistent, hardworking, who are dedicated, if you have a dream already, then you will make it, even within a year. But you need to have that dream. इसमें से किसी ने सोचा है क्या करना लाइफ में? किसी ने सोचा है? आप है तुम सब लोग इंटर्न्स है यहाँ पे थर्ड माइनर के लोग हैं, सेकेंड ईयर के लोग हैं. सेकेंड ईयर ठीक है, थर्ड माइनर और मेजर वाले सोचा है क्या करना है? किधर जाओगे तुम लोग अगर तुम लोग सोचना रहे तो? बाकी सब कुछ सोच लेते हैं कि इसके साथ बाहर जाऊंगा, इसके साथ बाहर जाऊंगी. लाइफ का क्या? What about the biggest question? What is your roadmap? Where are you all going to end? If you all cannot think about it, how are you all going to even achieve it? कभी सोचा, कभी खुद को क्वेश्चन किया है? हो गया अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया है, क्या करना है? तुमने सोचा है? We all came here, if I'm not wrong, 95% wanted to be cardiologist. Yes, this is a hard fact. When you all come here, when you all start your MBBS, सबको cardiologist बनना होता है. कहाँ जाता है वो ड्रीम? कहाँ जाता है? सबको पूछो ना, सबका आंसर होता है cardiologist बनना है. It is just a matter how you all look at it. If you all see your setbacks, your failure in your final year, first year, second year, you are never going to achieve it. Yeah, first and second year fail होने के लिए पढ़ना. Your PG test, you are supposed to fail. That is how you will grow. अगर यहाँ पे फेल नहीं होगे तो किधर एग्जाम वाले दिन फेल होना है? एग्जाम दो, टेस्ट दो, वो टेस्ट में पढ़ोगे तुम लोग और टेस्ट में कॉपी मत करो. वो टेस्ट में कॉपी तुम लोग यूनिवर्सिटी में भले कॉपी करो क्योंकि पास होना है वहाँ पे, और टेस्ट में कॉपी मत करो क्योंकि टेस्ट में तुम लोग को पता चलेगा कि व्हाट यू आर नीड टू लर्न. एग्जाम वाले दिन वो नहीं कर सकते. इट इज अ बैड वे ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम कि क्या अभी कॉपी ना करो, फेल हो जाओगे, 6 महीने लग जाएंगे. एग्जाम वाले दिन कॉपी करो, और बाकी के दिन बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. बिकॉज इफ यू ऑल आर कीपिंग योरसेल्फ बिहाइंड द लाइन, यू ऑल विल नेवर सी द ट्रू पिक्चर. सो इसमें यहाँ पे बोलने के उनको क्या बनना है अभी? फर्स्ट ईयर में आने से पहले अगर कोई किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो सब लोग तुरंत बोलते हैं यार कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे बोलना है आंसर. आज कोई भी नहीं बोल रहा है. क्यों? Is anyone going to question you all? तुम लोग तो इतना स्टेज पे रहते हो. What you all do that? अरे you all should lead, you all are leading here. यहाँ पे अपन खुद से ही मतलब रियलिटी से पीछे हट रहे तो तुम लोग कैसे अचीव करोगे? If you all are not truthful to yourself, you all will not make it. I'm giving you hard facts. If you all don't have a roadmap planned, you will always be on the setback. You all will reach somewhere, but it won't be something that is satisfying. तो खुद को आज बस ये क्वेश्चन पूछो कि क्या बनना है लाइफ में. इंटर्न्स तो अभी बोलो हो गया, अभी 3 महीने इंटर्नशिप के भी हो गए, क्या करने वाले तुम लोग? हंसने के लिए क्या है उसमें? वही तो बोलो. ठीक है कुछ तो सोचा होगा, कोई तो इंटर्न्स कुछ तो सोचा होगा तुम लोगों ने.
If you all sit like this, no one is going to get you that seat. Who that's better? एक road map बनाओ. What you all want in your life. If you all don't have a road map, you all won't succeed. अरे क्यों इतना तुम लोग किस चीज से डर रहे हो? ना कोई यहाँ पे जज नहीं करता है किसी को. और अगर करता भी होगा तो खुद के दिमाग में पता है कि खुद किधर स्टैंड कर रहे हो. So there's nothing to be ashamed of. Even if you all are just going to do MBBS, it is going to be worthwhile if you all excel at it. So be truthful to yourself. और यहाँ पे कितने लोग क्लिनिक्स अटेंड करते हैं? सच्ची अटेंड करते हैं. मतलब अगर यहाँ पे मैंने किसी पेशेंट को अभी पूछा कि वो आए थे कि वो बोलने चाहिए हाँ आए थे. ऐसे कितने लोगों ने किया है? पोस्टिंग हुई है ना आज? क्या था आज का? अलग अलग होते हैं. क्या पेशेंट को देखा होगा ना तुम लोगों ने? क्या देखा? तुम लोग अगर पोस्टिंग ठीक से नहीं लेते हो तो तुम लोग कैसे ही क्लिनिशियन बनोगे? नहीं होता है. जो एमबीबीएस में करते हैं वही लाइफ टाइम के लिए रहता है. क्योंकि पीजी में जाके कोई नहीं सिखाएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा. यार लाइक एमबीबीएस में सीख के नहीं आए होगे. कोई ये नहीं बोलेगा कि आजा मैं तुझे ये सिखाती हूँ आज. नो वन इज गोइंग टू स्पून फीड यू देयर. क्या देखा तुम लोगों ने आज? ऑपरेशन देखा. हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ जेस्टेशन. तो वो क्वेश्चन नीट में भी आते हैं. तो आज ही प्रिपेयर कर सकते थे तुम लोग. तो तुम लोगों ने क्या किया? टेस्ट लिया तुम लोगों ने. If you all don't attend clinics, you all will miss on those questions. To be frank enough, NEET has been changing its pattern. It is more towards USMLE pattern. If you all don't attend clinics, you all are going to regret it later. अभी इधर कितने लोगों को फोगाटी कैथेटर का यूज पता है? ये सेम चीज सूर्या सर ने पूछा था. फोगाटी कैथेटर किसके लिए यूज करते हो? बोलो कोई. बैठने के लाए होंगे सब लोग. पढ़ते लाइब्रेरी में बैठते हैं सब लोग तुम्हारे सीनियर. गूगल कर लो अभी. पर वो आज सीख लोगे. वो इमेज देखो अभी के अभी सब लोग वो गूगल पे देखो कि फोगाटीज कैथेटर क्या है. हाँ करेक्ट. तो रिमूव द थ्रोम्बेक्टॉमी के लिए यूज करते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी. और जिसमें तुम लोग सब देख के सीख सकते हो. अभी कैथेटर के साइज किसको पता है? यहाँ पे कैथेटर के साइज जैनब मैम के निमोनिक्स ये तो इंटर्न्स को आना चाहिए. नंबर का कैथेटर 14 नंबर का कैथेटर का कलर ग्रीन. ये तुम लोग जब देखोगे तभी याद होगा. अभी इधर कितने लोग अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले भी करते हैं. तुम लोगों ने देखा है हेपेरिन किस रूट से देते हैं? हेपेरिन 2 रूट से देते हैं. एक प्रोफाइल एक्सिस के लिए देते हैं और एक मैनेजमेंट के लिए देते हैं इमरजेंसी. प्रोफाइल एक्सिस कौन से रूट से देते हैं? कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूट से देते हैं. सबक्यूट. यस. डोंट हेजिटेट. इफ यू ऑल हैव दैट हेजिटेशन नाउ, एग्जाम में भी यही होगा. सबक्यूट बोलूं, इंट्रामस्कुलर करूं, क्या करूं? दिस इज द सेम ड्यूरिंग एग्जाम. डोंट थिंक कि वो 4 ऑप्शंस पढ़ के यू ऑल विल मेक योर आंसर. वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन तभी तक रहेगा जब तक तुम लोग क्लिनिक्स नहीं देखोगे. अभी ये तो सबका आना चाहिए. हेपेरिन अपन सेकेंड ईयर से पढ़ते हैं. हेपेरिन ऐसा है वैसा है. 3 टाइप के हेपेरिन है. हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सबको याद आता है. पर हेपेरिन किस रूट से देता है वो पता नहीं होता. दैट इज बिकॉज वी आर लैकिंग इन क्लिनिक्स. कोई सिखा नहीं रहा है. ठीक है, खुद जाके पूछो ना. The patient will never hesitate to answer your question. If you all are really interested, they will help you.
तुम लोग अगर यही बिहेवियर लेकर जाओगे ना यूनिवर्सिटी के एग्जाम वाले दिन पेशेंट को पता है कि तुम लोग बहुत अनएक्सपीरियंस्ड हो, दे विल आंसर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू आंसर। तो अभी से वो आदत लगाओ। आई स्टिल रिमेंबर मैंने पार्किंसन का केस 3rd ईयर में लिया था और लेकर, बट इफ यू ऑल डोंट टेक दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर योरसेल्फ यू विल नेवर लर्न, यू विल एब्सोल्युटली नेवर लर्न। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गेट्स। पार्किंसन का गेट कौन सा है? शफलिंग स्लो स्टेपिंग या शफलिंग गेट होता है। अभी तुम लोग जब तक ये देखोगे नहीं कैसे सीखोगे? अभी आईवी कैथेटर के साइज पूछते हैं, कलर पूछते हैं, फ्लो पूछते हैं। पिंक कलर का साइज क्या है? 20 रोज देखते हैं अपन ये जाके कि 20 नंबर का कैथेटर कलर क्या है। पिंक इज वेरी कॉमनली यूज। तो तुम लोग जब तक देखोगे नहीं वो याद नहीं होगा। Your eyes will see things, but if your mind doesn't know it, you will never address it. You will never address it. एग्जाम में ऐसे ही होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने 2 क्वेश्चन चेंज किए एग्जाम में, एक आईटी फ्रैक्चर था, एक नेक ऑफ फ्रैक्चर था। ऐसे कभी नहीं होता है कि दोनों क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ गया, वो भी सेम सेट में आ गया। एंड मुझे इतना कंफ्यूजन था दैट आई चेंज माई करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने गलत बोला। आई नेवर करेक्टेड इट, आई केप्ट विथ मी फॉर एवर। एग्जाम में जाकर मैंने कवर वही गलत मार्क किया। इट कॉस्टेड मी इंस्टेंटली something to regret so much because I did not address my mistake. Don't do the same mistake. जो तुम लोग क्लिनिक्स में मिस करोगे ना वो तुम लोग को लाइफ भर चुभेगा। मुझे जिंदगी भर ये चुभेगा कि मैंने वो 2 क्वेश्चन करेक्ट नहीं किए मेरे लाइफ के। That was so easy. वो गलत मुझे करना ही नहीं चाहिए था, बट वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि I did not address it. Address your mistakes at the same time. Make mistakes, learn from them. लाइफ में गलत चीजें ही याद रहते हैं। जो अभी गलत करोगे ना वो तभी वही याद रहेगा, तभी तुम लोग वही करेक्ट मार्क करके आओगे। क्योंकि यू ऑल नो कि ये गलत किया है मैंने आज, जो मैं लाइफ में कभी गलत नहीं कर सकती। दीज आर थिंग्स व्हिच नो वन विल टेल यू। कोई फर्स्ट टाइम पर ये नहीं बोलेगा कि मैंने लाइफ में गलत किया है। हम लोग सब लोग बात करते हैं, वी ऑल डिस्कस आवर मिस्टेक्स फर्स्ट। रैंडम्स जब भी देते हो ना पहले गलत चीज़ें एड्रेस करो, क्योंकि यू ऑल लर्न फ्रॉम इट, यू ऑल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देयर इज नथिंग सो हर्टफुल कि मैंने वो अगर 2 क्वेश्चन पहले करेक्ट करते तो मुझे आज इंस्टेंटली मिलता। दैट वाज माय ड्रीम कॉलेज, अ ड्रीम कॉलेज, माय होम पिक्चर, माय फोन का लॉक स्क्रीन, एवरीथिंग। इट मेंट द वर्ल्ड टू मी। इट कॉस्टेड मी बिकॉज आई डिड नॉट करेक्ट दोस 2 मिस्टेक्स। Rank 34 is a very good rank, but I was aiming for something very different. It is not a compensation, but लाइफ में ऐसे हो सकता है कि यार एक करेक्ट हो जाता तो मुझे रेडियो का सीट मिल जाता था। ऐसे बहुत लोग बोलोगे, आज नहीं, जिस दिन एग्जाम होगा ना रिजल्ट आएगा वो सब बोलोगे यार एक क्वेश्चन ने मेरा रेडियो का सीट ले लिया, और वो जिंदगी भर तक रहेगा। क्योंकि रेडियो का सीट फॉर मी इट वाज ऑलवेज मेडिसिन, बट जिसको भी रेडियो they couldn't get it because एक क्वेश्चन गलत हो गया। You all will realize that mistake of one question will cost you for the rest of your life. So make mistakes. कोई क्या ही बोलेगा? क्या बोलने वाला है कोई? We all are standing in the same boat. Literally same boat. कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक्स्ट्रा माइल अगर तुम लोग खुद नहीं लोगे ना यहीं पे रह जाओगे, यहीं पे रह जाओगे। I am addressing my weakest points to you. अभी तो तुम लोग क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इतना स्मूथ किसी का भी नहीं रहता। इट इज ऑलवेज अबाउट अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तुम लोग अगर इंडिविजुअली पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम। बट तुम लोग अगर खुद की गलतियों को अभी एड्रेस नहीं करोगे ना, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड इन योर एग्जाम, यू ऑल विल ऑलवेज हैव दैट रिग्रेट लेटर कि यार ये हेजिटेशन की वजह से रह गया। अभी किसी को कुछ नहीं पूछना है। क्वेश्चन आंसर राउंड बनते रह जाएगा अगर तुम लोग अभी पूछोगे नहीं तो।
one hard fact. Micro should be your best subject. It should be at the tip of your tongue. क्योंकि माइक्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कुछ बाहर का नहीं आने वाला है. जो टेक्स्ट बुक में वही आने वाला है, जो नोट्स में वही आने वाला है. They are just going to go around the bush and hit the same duck. So it is not going to be any different. I have one tip for you. I use this principle of 14 days. कि every 14th day पे मैंने जो अगर आज 1 जुलाई है तो 14th जुलाई को वो फिर से वो सब्जेक्ट रिवाइज होना चाहिए. So if there are 3 volatile subjects to you, every 14th day पे जो सब्जेक्ट करना है, so पूरा सब्जेक्ट पूरा बुक तो नहीं पढ़ के हो सकता. तो फॉर दैट रीजन BTR और DVT बना. सो BTR का यूज इसीलिए हुआ है कि whenever whatever volatile subjects come to you, वो every 14th day को एड्रेस होना चाहिए. बिकॉज तेरा GT का गैप होगा 14 डेज या फिर 1 मंथ का. तो 1 मंथ का गैप है, दैट मीन्स 28 डेज हो गया तूने माइक्रो किया नहीं है. तो ऑब्वियसली इफ इट इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट यू नीड टू रिवाइज इट. तो एवरी 14th डे को 2 घंटा देना है BTR सॉल्व करना. एंड BTR फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी रेड योर नोट्स, BTR शुड बी योर एक्टिव रिकॉल. राइट देयर, बिकॉज व्हेन यू आर गिवन 4 ऑप्शंस यू ऑल थिंक इट इज पॉसिबल. जब एक बुक एम्प्टी रहेगा ना और जब तुम लोग को आंसर भरना पड़ेगा, दैट इज अ रियल टास्क. क्योंकि तुम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, तुम लोग को खुद से सोचना है. वो एक्टिव रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर यू आई सजेस्ट कि एक्टिव रिकॉल करना एंड एवरी 14th डे को read those from BTR or DVT and solve 100 MCQ for that subject every week. So by 2 months your micro will be very strong. For psychiatry, I'll suggest you one thing. There's a lot. It's a vast subject. Don't go around and solve it. Don't solve the whole module for psychiatry. उससे बेटर है जो PYQs आया है, PYQs करो, PYTs करो और BTR. क्योंकि psychiatry में they are going to ask you 5 questions. So it is very important to get 5 questions correct, but you all cannot spend more than 7 days for psychiatry. So read BTR constantly. Once see psychiatry में they are going to ask you schizophrenia, they are going to ask you antipsychotic के question. You all cannot get those wrong because you all are reading it very often. RMAC में आएगा वो और इधर आएगा. तो उसीलिए psychiatry के लिए stick to very short source और PYQs करना, फिर उसका PYTs करना और schema खत्म करना. Ophthalm is my 9th right? I'll suggest you one thing. Passive learning is very important. क्योंकि ophthalm you will read today, 1 month later it is volatile. और 14 days के बाद वाला concept भी didn't work out for me because मेरे concepts अच्छे खासे clear थे. But to apply those were different. इसके लिए मैंने क्या किया, मैं रोज 10 क्वेश्चन का मॉड्यूल सॉल्व करती हूँ ophthalm. बहुत ज़्यादा. सो इफ आई एम बोर्ड इंटर्नशिप में वेरी ऑफन डॉलर स्पेंडिंग योर टाइम देयर, कुछ नहीं होता है करने के लिए. तो आई यूज्ड टू डू पैसिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग में आई यूज्ड टू सी इमेजेस, आई यूज्ड टू सॉल्व एमसीक्यूज. क्योंकि पढ़ना फॉर मी इट वाज लाइक वहाँ पे 6 घंटा डाल के भी हम रीडिंग में था 6 आवर्स काम करते हुए भी इट वाज नॉट प्रोडक्टिव फॉर मी. एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो 6 घंटे कभी काउंट ही नहीं की. तो बेटर यूज पैसिव लर्निंग. तो तभी सॉल्व एमसीक्यूज. इमेजेस मॉड्यूल में जाके सिर्फ इमेजेस वाला ये यूज़ करना है, टैग यूज़ करना है, ऑप्शन सॉल्व करना है. इट विल बी अ स्टेप. सी द 3 क्वेश्चंस यू आर एड्रेसिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर प्लानिंग फॉर INCT, माइक्रो शुड बी योर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट. योर सेकेंड ईयर शुड बी योर बेस्ट सब्जेक्ट इफ यू आर प्लानिंग फॉर INICT. बिकॉज INICT मैं अभी भी बोलती हूँ, तुम लोग अगर INICT के लिए प्रिपेयर करोगे ना, यू ऑल विल नेवर रिग्रेट इट. यू ऑल विल ऑलवेज बी गुड. सेंट्रल इंस्टीट्यूट का टैग अलग होता है. जब भी तुम लोग किसी मतलब पोस्ट योर MD इफ यू स्टार्ट वर्किंग यू ऑल गेट अ वेरी डिफरेंट रेफरेंस लेवल. वो लोग इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए बिकॉज द कॉलेज आई एम गोइंग टू गो इज गोइंग टू सेट प्रोटोकॉल्स. वही प्रोटोकॉल्स अपन यहाँ पे फॉलो करते हैं. व्हाट अ ब्लेसिंग इट विल बी टू एक्सपीरियंस द होल प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्रोटोकॉल. सो डोंट हेजिटेट टू गिव INCT. बिल्कुल नहीं. मतलब अभी तो जो इंटर्न्स है सबको बोलूँगी कि अभी से ही करो. रोज सॉल्व INI PYQs. इट विल हेल्प यू एक्सेल. मतलब इवन इफ यू आर थिंकिंग यार रैंक 2000 आ गया, वो रैंक 2000 विल हेल्प यू एक्सेल इन नीट.
क्योंकि ऑल नो कि यार मैं इतने टफ एग्जाम में मेरा रैंक अगर 2000 आ गया तो नीट में आई डू वंडर्स. इट इज ऑलवेज गोइंग टू पुश यू. वो होता है ना अपन आरो वाला स्लिंग पीछे लेते हैं, वो एग्जैक्टली वो वाला तुम लोग को मोमेंटम देगा. राइट, INICT इज दैट मोमेंटम थिंग. और मी इट वॉज अ चैलेंज. यार सब लोग बोल रहे हैं INICT पे मत फोकस कर, सिर्फ 125 क्लिनिकल सीट्स है, दैट टू यू आर एमिंग फॉर मेडिसिन. नहीं होगा, मत कर. क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? वी आर रीडिंग द सेम बुक्स, कुछ अलग नहीं है. रादर गवर्नमेंट वाले सबसे लोएस्ट रेफरेंस लेवल यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता. वो लोग टाइम पास करते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता. वो लोग सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ बुक्स रीड करते हैं तो जस्ट पास से एग्जाम. और अपन तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं. PDC हर एक के पास होता है. मैं जब भी लाइब्रेरी में देखती हूँ, अभी भी फर्स्ट ईयर वाले PDC ही पढ़ते हैं. एंड दैट शुड बी कंटिन्यू. तुम लोगों को PDC ही पढ़ना है फर्स्ट ईयर, बिकॉज दोज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू लेटर. अभी बहुत सारे नर्व के क्वेश्चन आते हैं. इट इज लाइक नर्व का क्वेश्चन दो, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो वो एग्जाम में नहीं रहा. तो अभी कर लो ना. When you all read it today, you all don't need to revise it before the day of exam. वो नर्व के क्वेश्चन तुम लोग के अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. Something that everyone is going to make a mistake in exam. अभी स्ट्रॉन्ग कर लो ना. It is about making your 200 topics stronger. It is not about any other subject. It is about 200 topics. ना 200 topics 200 दिन में हो जाता है. कोई ऐसे क्यों नहीं सोचता है 200 टॉपिक ही कर रहा है. 200 टॉपिक पॉसिबल नहीं है. यार एक दिन यूनिवर्सिटी एक दिन पहले अपन उससे ज़्यादा पेजेस पढ़ते हैं. तो 200 टॉपिक्स क्यों पॉसिबल नहीं है? स्टार्ट फ्रॉम योर बिगिनिंग. तुम लोग अगर एक लिस्ट बनाओगे ना, 200 टॉपिक इज वेरी मच पॉसिबल. एंड ऐसे नहीं होगा कि 200 के 200 टॉपिक जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें से आएगा. यू ऑल मेक क्लेवर गेसेस. दैट इज बिकॉज यू आर सॉल्वेंट्स. अभी हम लोग के आईना में क्वेश्चन था पटेला फ्रैक्चर का. इमेज में पटेला का फ्रैक्चर दिखाई नहीं. इट वॉज जस्ट उल्टा इमेज, पोस्टीरियरली दिया हुआ इमेज. पटेला का फ्रैक्चर नहीं था. बट दैट वॉज माई केस. यार आईना वाले नीट वाले पटेला फ्रैक्चर बहुत पूछते. तो रैदर देन मार्किंग एनीथिंग अदर देन कुछ और गलत करना है, उससे बेटर है मेक माई आंसर एज पटेला फ्रैक्चर. गलत हो गया तो गलत हो गया. इट वॉज माई केस. करेक्ट हो गया वो. तुम लोग को लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम लोग को आंसर नहीं पता होगा. यू आर जस्ट गोइंग टू मेक अ गेस. अभी जो पेशेंट भी आते हैं लाइफ में, यू आर नेवर नो द कंप्लीट हिस्ट्री. नेवर नो द कंप्लीट हिस्ट्री. जो करते हैं अपन गेस वर्क से स्टार्ट करते हैं. लिटरली कोई पेशेंट अगर तुम लोग के पास MI के पास आ रहा है, तुम लोग कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो? तुम लोगों को पता भी नहीं है कि वो इंफीरियर वॉल MI है या फिर वो पोस्टीरियर वॉल MI है या एंटीरियर वॉल MI है. क्या करते हो तुम लोग? क्या करते हो? जबकि वन ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंटीरियर वॉल MI. What is contraindicated in inferior wall MI? Nitrates. Patient का BP ऑलरेडी गिर रहा है, तो लोग उसको नाइट्रेट्स क्यों ही दोगे? But yet कोई भी पेशेंट आया MI का, we start them on nitrates because we don't know the history. ECG तब तक नहीं निकला रहता है. Just to reduce patient का pain, we give them nitrates. That is because we are trying. Exam में भी यही करना है. You all need to try. Question नहीं आता है, 4 ऑप्शन पढ़ो. क्या ही होने वाला है? People literally ignore the question कि यार ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, छोड़ देते हैं. No one is going to give you that extra mark कि यार ये question किधर भी नहीं था, सबको बोनस देते हैं. कोई भी नहीं आता. You all just become a very good clinician, a good magician. क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट ढूंढना जो है ना, वो रूल आउट करती होता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो तुम लोगों को पता ही नहीं होता. वो तुम लोगों को कैलकुलेटेड गेस लेना ही है. अभी पटेला फ्रैक्चर मुझे पता था, ये हर साल पूछता है. तो बस इन्होंने ऐसा एक छोटा सा लाइन दे दिया, दिस हैज टू बी पटेला फ्रैक्चर. अगर मेरा वो गलत क्वेश्चन होता तो मेरा रैंक और 10-15 से नीचे जाता. यू आर नीड टू टेक दैट एक्स्ट्रा गेस. अभी एग्जाम में क्वेश्चन था aberrant right subclavian artery. For anyone who is solving INIT, they know कि ये हर साल पूछते हैं ये क्वेश्चन किसी और फॉर्म में.
एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट पूछते हैं या फिर इमेज देते हैं या फिर डिस्पेचा लुसोरिया का एग्जैक्टली केस रहता है। नहीं था इस टाइम ऐसे, इस टाइम उन्होंने डायरेक्टली सीटी इमेज दे दिया था। अब सीटी इमेज किसको पढ़ने आता है? और ऑप्शन 4 थे, एक ट्रकियोइसोफेजियल फिस्टुला था, एक ट्रकिया डायवर्टिकुलम था, एक राइट अपेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी था और एक ऐसा चौथा ऑप्शन था। किसी ने इसका आज तक देखा है सीटी कभी? नहीं देखा। और many of those who have not yet seen the image but have solved their PYQ, उन्होंने करेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार INI यही क्वेश्चन पूछता है, इसको मैं गेस करके यही मार्क कर देता। That is how you excel in INI. There is no secret. If you all solve PYQs, you are excellent. Basically, INI is very easier than NEET. क्योंकि NEET में there is horizontal integration. वो लोग OBGY से 20-25 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और INI-CT ऐसा नहीं है। INI में वो लोग एक साल के लिए 10 ही क्वेश्चन डाल देंगे, अगले साल 20 क्वेश्चन डाल देंगे। So you all cannot predict it that way. But if you all are strong with your previous year topics, you all will definitely excel. मतलब मैं अभी लिख के देती हूँ, अगर तुम लोगों ने INI PYT बहुत अच्छे से किया ना, तुम लोग को रैंक आने ही वाला है। Even if you all don't have that faith, I have that faith in you कि तुम लोग वो करोगे। यार इतना कोई फेथ नहीं दिखाता है लाइफ, मुझे किसी ने नहीं दिखाया। बट येट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि INI में मैंने इतना किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। एंड दैट इज हाउ इट इज। अभी गवर्नमेंट में एक क्वेश्चन आया जो मैंने आंसर करेक्ट करके चेंज किया गलत। वो क्वेश्चन था, उसमें पेशेंट को एन्युलर लीजन किस में दिखता है। उसमें ऑप्शन था एक एक्जिमा था, एक पोरोकेरेटोसिस था, जो आंसर करेक्ट है पर मैंने उसको चेंज करके गलत किया। INI हैज़ अ वेरी स्पेशल लाइकिंग फॉर एक्सेप्शन। यार उनके क्वेश्चन में 20 से 30 क्वेश्चन तो एक्सेप्शन ही होता है। अगर यू ऑल मिस दैट एक्सेप्शन वाला वर्ड, तुम लोग का रैंक जा चुका है, तुम लोग वो एग्जाम में क्वालिफाई भी नहीं होंगे। सो रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। जो कोई भी अभी GTs दे रहा है ना, मेक श्योर टू रीड दैट क्वेश्चन ट्वाइस। और अगर एक बार मार्क कर दिया ना, बाय गॉड की कसम वो कभी चेंज नहीं करना। You will regret it later कि यार क्या कर दिया। Never change unless you have read the question wrong. So always make a habit कि अगर आंसर मार्क किया है, factual question है, never come back to it. रिव्यू करते वक्त उसमें बस देखना कि एक्सेप्ट वाला वर्ड रहने गया। If you have not missed the word except, वो आंसर 99% करेक्ट रहने वाला है। Because your spinal reflex, it is very strong, very strong. जो लोग बोलते हैं ना gut reflex है, it is not gut reflex, it is your spinal reflex. जो टिप पे आता है ना लास्ट में आंसर, वही मार्क करना है। कितना भी दिमाग उसके बाद बोले यार नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो ओवर थिंकिंग होता है। मेनी पीपल डू इट, आई हैव डन दैट टू। डोंट डू इट, यू ऑल विल रिग्रेट। तो जो स्पाइनल टिप पे आंसर आया ना, मार्क करना हो, बिकॉज यू ऑल विल मतलब जो रिजल्ट वाला डे होगा ना, तुम लोग सोचोगे नहीं कि यार ये क्या हो गया मेरे से, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तुमको फर्स्ट। बिगेस्ट ट्रिप लाइफ में गिल्ट जो देगा ना, वो कुछ और नहीं देगा। और ए और जी बैच में ये नहीं बोलूँगी, पर बाकी के बैच वालों को मैं बोलूँगी, गिल्ट वाला ट्रिप सबसे बड़ा होता है। भाई साहब हम लोगों ने सब लोग टॉपर्स हैं हम लोग, और हम लोग लिया F बैच क्योंकि हम लोग को नीट के पहले छुट्टियाँ चाहिए थी, क्योंकि लाइफ इज नॉट प्लान। हम लोग का एग्जाम होने वाला था जनवरी में, वो हो गया मार्च में, वो हो गया जून में, फिर जुलाई में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अगस्त में होने वाला है। कुछ सर्टेन था इसमें, हम लोगों ने बस वो सर्टेनिटी के बेसिस पे हम लोगों ने किया नीट होगा तो जनवरी में ही होगा। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस साल जनवरी में ही होगा, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग किया F बैच। अभी सबको पता है जो इंटर्न से हमें F बैच सबसे घटिया बैच है, क्योंकि तुम लोग हर जगह पे किसते रहते हो, हर जगह पे जिधर जाते हो उसके सामने वाली बैच ने कुछ किया होता है एंड यू आर रिग्रेटेड यार ये क्या हो गया, F बैच में क्या कर दिया। तो ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द गिल्ट। जब तुम लोग देखोगे ना लाइब्रेरी में कि यार ए और जी बैच वाले बैठे हैं, वो गिल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि वो लोग दिन भर रहेंगे वहाँ पे, वो लोग
2 या 3 घंटे पढ़ेंगे, वो लोग इस ट्रिप में रहेंगे कि यार बाकी सब बैचेस अभी पोस्टिंग में, तो इसका फायदा उठाना है, वो गिल्ट लेके आगे जाना है। बिकॉज गिल्ट, द नेगेटिव थिंग्स आर वेरी पावरफुल। तो तुम अगर डोपामिन सर्च देखोगे ना, वो 12 घंटे के लिए रहता है, चला ही रहता है, पर वही अगर कोई नेगेटिव रिवॉर्ड होगा ना, वो तुम लोग के साथ 1 महीना के लिए रहता है। व्हाई नॉट यूज दैट गिल्ट? अभी तो देख रहा है कि कोई लाइब्रेरी में बैठा है, तू नहीं है लाइब्रेरी में, तू जब लाइब्रेरी जाएगा इट इज लाइक यार इसने अब तक 6 घंटा तो पढ़ा है, मुझे 8 घंटे पढ़ने ही है। हाँ, ऐसे ही होता है लाइफ में। वी थिंक कि अपन कंपेयर नहीं करते, बट इट इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग। कोई नहीं बोलेगा, सब लोग बोलेंगे यार हम लोग किसी को कंपेयर नहीं करते थे। बुलशिट, बुलशिट। एवरीवन इज गोइंग टू कंपेयर, एवरीवन, लिटरली एवरीवन। तुम लोगों ने एक छोटा सा इवन वीकली टेस्ट दिया हो ना, उसमें देखेंगे कौन टॉपर है, किसके कितने मार्क्स है, कौन कौन फेल हुआ है। इट इज हाउ वी आर एज ह्यूमंस, वी हैव इवॉल्व्ड विद दिस। वो कंपैरिजन वाला पार्ट रहेगा। तो तू जब देखेगा कि कोई और बैठा है लाइब्रेरी में, मुझे पढ़ना है, तू 8 घंटे पढ़ेगा। अगर तुझे और एक बैड ट्रिप चाहिए तो रोज ड्यूटी के टाइम पे 50 MCQ सॉल्व करना, और वो भी कंप्लीट सब्जेक्ट, नो फिल्टर्स, सारे मॉड्यूल, सारे टैग्स, 50 MCQ सॉल्व करना। बिकॉज इट इज अ लर्निंग। जितना तुम लोग मॉड्यूल से सीखोगे ना, उतना किसी और से नहीं सीखोगे। और अगर तुम लोग को टाइम कम है तो स्कीमा यूज करो, स्कीमा सॉल्व करो, और स्कीमा से तुम लोग को पता चलेगा कि ये स्कीमा से यही पता चलेगा कि यही टॉपिक को एड्रेस करना है तुम लोग। सो सॉल्विंग एमसीक्यू इज अ की। इंटर्नशिप में तो तुम लोग को रोज बिना किसी मतलब देयर शुड बी नो एब्सोल्युटली नो ऑब्स्टिकल टू दिस, रोज 100 MCQ सॉल्व करना। Because 100 MCQ multiplied by 300 is going to be 30,000. तो 30,000 MCQ तुम लोग सॉल्व करोगे। 40,000 MCQ। तो तुम लोग सोचो, तुम लोग को 200 MCQ देना एग्जाम में, you are solving 30,000. Why not? कोई तुम लोग को ऐसे नहीं, सब लोग बोलेंगे यार हम लोगों ने ये किया वो किया। मैं तुम लोग को लिटरली बोलती हूँ कि तुम लोग अगर 100 MCQ सॉल्व करोगे ना, तुम लोग बहुत लोगों से आगे ऑलरेडी। बिकॉज पीपल हेजिटेट टू सॉल्व MCQ। क्यों? क्योंकि गलत होगा, नेगेटिव आएगा। सबके कंपैरिजन में मेरा 3% आ गया, क्या हुआ? फॉर सो मेनी मॉड्यूल्स आई वाज बिलो 25%। अभी क्या हो गया? और पीपल से यार इतने ही कम आ गए, ठीक है ना, 25%। दोस टॉपिक्स आर माय स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ। अब मुझे एंटीपार्टम ह्यूमरिज कोई नींद में भी उठा के पूछा, मैं गलत नहीं करूँ, बिकॉज आई वॉज वीक एट इट। यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तुम लोग जितना गलत अभी करोगे ना, उतना तुम लोग को लाइफ में हेल्प करेगा। किसी और को कोई डाउट? कुछ अलग नहीं है। यू ऑल जस्ट नीड टू फोकस ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स में टॉपिक रिपीट होता है एंड दोज आर वेरी पर्टिकुलर। अभी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस हर साल का क्वेश्चन, इस साल नहीं आया बट एवरी ईयर किसी अलग फॉर्मेट में आता है। एक साल उन्होंने पूछा कि ट्रीटमेंट क्या है, नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू आस्क यू मेडलार व्हाट इज, नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू आस्क यू इमेज देखिए, नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू आस्क यू क्यों पोटेशियम आयोडाइड देखिए। दे आर जस्ट गोइंग टू रिपीट द टॉपिक, यू आर जस्ट नीड टू स्ट्रेंथन द टॉपिक। अभी तुम लोग नीट में कैसे, तुम लोगों को पटेला फ्रैक्चर है, यू ऑल नो कि टेंशन बैंड वायरिंग करना है। नीट INICT को टास्क होगा, आईना तुम लोग को इमेज देगा, आईना विल आस्क यू जस्ट वन एक्स्ट्रा माइल अहेड ऑफ इट। दे गिव यू केस सिनेरियो, ऐसे कुछ होगा, पर आईना इज नथिंग डिफरेंट देन नीट। यू ऑल जस्ट नीड टू स्ट्रेंथन दोस टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक स्ट्रेंथन करना। वो गन शॉट इंजरी हर साल आईने में आता है, कॉपी कर लो ना। तुम अगर आज भी अगर 5 टॉपिक रोज करोगे ना, तो तुम लोग यू आर वेरी मच अहेड इन द रेस। तुम लोग इसको डिवाइड करो, डोंट सी इट एज अ होल पिक्चर। लाइफ में ना सब लोग सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं अपना, और अपन अपने लिटरली अपने वर्स्ट पीरियड्स को वो ट्रेलर से कंपेयर करते हैं। रील्स की वजह से तो ज़्यादा हो गया। वी सी पीपल सक्सेस, वी सी दोज रील्स। वो रील्स के पीछे कितने साल लगे, नो वन हैज एनी आइडिया अबाउट इट, बट येट वी कंपेयर इट एंड वी स्टार्ट सेइंग यार ये लोगों ने इतना अचीव कर लिया, इतने जल्दी अचीव कर लिया। हू नोज कितने साल लगे, no one has any idea about it. I tell you, for me it was a 5-year journey. I am a slow learner and I need multiple reads, but I am here today. कोई पूछता है कि
यू मीडियोकर? नहीं, मेरा जर्नी बस ये था, आई डोंट वांट टू बी अ मीडियोकर एनीमोर। आई वाज अ मीडियोकर थ्रूआउट दिस जर्नी, आई वाज जस्ट लाइक यू। इट वाज जस्ट बिकॉज आई वाज कंसिस्टेंट। एंड वन वेरी थिंग, कीप योर फ्रेंड सर्कल वेरी गुड। अगर समवन इज ट्राइंग टू से कि यार टाइम पास कर लेते हैं, एग्जाम के पहले पढ़ लेते हैं, छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी, इंटर्न्स स्पेशली, क्योंकि यू ऑल हैव स्पेंट 4.5 years टुगेदर। एंड इफ यू ऑल थिंक कि इसके बाद भी अगर तुम लोग एक साल बॉन्डिंग के लिए चाहिए, तो ये फ्रेंडशिप कभी लाइफ में नहीं चलना है। 4.5 years बहुत काफ़ी होता है टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट। If you all are friends who are motivating you, you all are blessed with it. And if you all are not, stop it, put a full stop to it there. बोलना कि एक साल बाद मिलते हैं। कुछ नहीं होता है। सब लोग को अभी लगता होगा कि यार ये क्या बोल रही है कि फ्रेंडशिप छुड़वाने लग गई है। This is the hard fact. No one, absolutely no one. If someone is very caring enough, they will help you grow. They will literally help you grow. लोग बहुत bad trip देते हैं। Yeah, you are missing parties, you are doing this, you are not enjoying in life. I know my enjoyment. I know what is going to make me happy. If you all don't have that roadmap, you all will never succeed. तुम लोग दो ऑप्शन में रहोगे, यार मैं पार्टी करूँ या पढ़ूँ, पार्टी करूँ या पढ़ूँ, उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा। ना ढंग से पार्टी होती है, ना ढंग से पढ़े। तो अभी वो गोल तैयार कर लो कि क्या चाहिए लाइफ में। अगर तुम लोग अभी तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग को मजाक लग रहा है, पर वो लास्ट में ना वो इंटर्नशिप that 1 year of gap will make you realize so many things. अभी तुम लोग को पता नहीं होगा, but every year जो top 100 वाले लोग होते हैं ना, वो interns ही होते हैं, वो freshers होते हैं। तुम लोग लाइफ में कभी भी वो freshers वाला इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा, because you all are in touch with 4.5 years। तुम लोग एक साल इंटर्नशिप में सब कुछ देख लो, और इंटर्न्स ही फर्स्ट 100 में आते हैं। हर साल का रिकॉर्ड है कि इंटर्न्स ही टॉप 100 में आते हैं। तो अगर तुम लोग अभी ये बोल रहे हो कि यार इंटर्नशिप में मौज मजे है और उसके बाद एक साल रिपीट कर लेंगे, रिपीट में निकालेंगे, यू ऑल आर एब्सोल्युटली पुटिंग योरसेल्फ ऑन होप। दैट इज द बिगेस्ट सेटबैक। क्योंकि मैं तुम लोग अभी बोलती हूँ, गवर्नमेंट वाले यही बोलते हैं कि यार एक साल रिपीट कर लेंगे, निकालेंगे। तो तुम लोग सोचो कितना कम कॉम्पिटिशन होगा कि एवरी ईयर only 15 people from each college is going to study. 15 लोगों में अपन आराम से compete कर सकते हैं ना। What is stopping you from doing that? अपने कॉलेज में 6 घंटा पोस्ट इंटर्नशिप is going to be very easy. It is going to be very easy. इतना कभी नहीं होगा यार। कैटलैब और अगर MICU छोड़ दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम लोग 6 घंटे नहीं पढ़ते। कौन सा ड्यूटी था आज तक ऐसे तुम लोग को लगा यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, आज तो मैं बेड पे पड़े रह जाऊंगा, आई एम डन फॉर द डे, ऐसे कब हुआ? तुम बोलो एक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। अगर तुम लोग को लग रहा है तो बोलो, तुम उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। किसी ऐसे इंटर्नशिप पोस्टिंग के बाद लगा है तुम लोग को? 12 में लास्ट है, बट आई लास्ट यू वन थिंग, बॉयज में इतना काम होता है कि 12 आवर्स तुम लोग पूरे वहाँ पे काम करते रह जाओ। 12 आवर्स पूरे, मतलब तुम लोग को इवन 1 घंटा नहीं मिलेगा ब्रेक। 1 घंटा ब्रेक में ये कौन सा वर्ड है? वेट मेडिसिन वर्ड हम लोगों ने भी वर्ड किया है ऐसे। 1 मिनट, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, तुम लोग कितने चलो पोस्टेड? हाँ, we were also batch of 12। तो ऐसे क्या हो रहा है कि तुम लोग 2 जन नहीं हो? हाँ, तो फीमेल में काम होता है, फीमेल वर्ड में काम होता है क्या? सम डेज। इफ आई आस्क यू, तुम लोग का शायद 3 वीक का वर्ड पोस्टिंग होता है, और 3 वीक से शायद से 5 दिन, जिनके 5 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत काम होता है। तुम लोग अल्टरनेट नहीं कर सकते हो, आज मैं मेल करूँगा, नेक्स्ट डे तुम फीमेल करना, ऐसे कभी होता है क्या? See, there are going to be only 300 productive days and 365 days. Those rest 60 days are meant for passive learning. Passive learning is a key. क्या तुम लोग कान में ईयरफोन डाल दो, कुछ वीडियो चला दो, काम करते रहो, कोई पूछने वाला तुम लोग को कुछ? कोई नहीं पूछेगा। If you all don't take that extra mile for yourself, you all are not going to reach there. मतलब it is up to you. अगर तुम लोग को करना है ना, तुम लोग कुछ भी करके करो।
इट इज रियली अप टू यू। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब मेरे लिए तो आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, यार मुझे ये करना ही है आज ड्यूटी। इवन पोस्ट दैट आई हैड 2 या 3 years इवन इन वर्क, इवन इन ICU। MICU में भी मैं पढ़ती थी। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट पूरा एड्रेनलिन रश ICU का, एंड इस टाइम में पढ़ती थी। यार तुम लोग को अभी बोलती हूँ, आई सॉ अ केस ऑफ कोन्स डिजीज। अपने कॉलेज में भी कोन्स डिजीज का केस आता है, और नो वन टेक्स दैट एक्स्ट्रा माइल टू डायग्नोस इट। तुम लोग उसी दिन हाइपर एड्रेनलिज्म सीख सकते हो। इट इज अप टू योर हाउ यू आर एक्सप्लोरिंग। अब मैंने कोन्स देखा उस दिन, मैंने कोन्स का ट्रीटमेंट कभी का तभी कर लिया, मैंने कोन्स का पूरा केस देख लिया। आई सॉ अ पेशेंट, इट इज गोइंग टू बी इन माई मेमोरी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई नेवर फॉरगेट कि कोन्स के पेशेंट में एडिमा नहीं रहता। समथिंग सो सिंपल, बट दैट इज गोइंग टू बी स्टक इन माई memory for the rest of my life. That is because I saw, I witnessed, I noticed, I read, and then I made sure कि I revise it again. And जिस का केस आता है अपने पास, I have seen 4 जिस का केस during my internship. 4 जिस के केस अगर तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग को जिस का अभी क्यों पता नहीं सीरोटाइप क्या है? What is the CD marker for GIST? है अपने आप पे GIST के केसेस। There are 4 cases of GIST in 1 month. तुम लोग अगर देखोगे नहीं, तुम लोग को नहीं मिलेगा। You all can never complain. Especially second year वाले, तुम लोग अभी complain ही कर सकते हो कि patient नहीं है। If you all would have seen what we were living up to, अभी बहुत सारे patients हैं। हम लोग के टाइम पे bed roll हुआ करते थे। Patients इतने कम थे। अभी patients हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? Ask yourself those hard questions अगर तुम लोग को लाइफ में। और अभी तो बिल्कुल मत बोलो सेकेंड ईयर वाले कि यार हम लोग नारो पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली बुलशिट। सेकेंड ईयर में जाके क्लिनिक्स देखो, तुम लोग सेकेंड ईयर में भी सीखोगे। तुम लोग अगर हिस्ट्री टेकिंग नहीं आया ना लाइफ में, तुम लोग रिग्रेट करोगे कि यार नीट के लिए पढ़ते रहेगा, हिस्ट्री टेकिंग रहेगा। पीजी में कोई नहीं सिखाएगा। पीजी में लेवल टू लाइफ फॉर द डायग्नोसिस। तुम लोग हिस्ट्री नहीं लोगे, कैसे तुम लोग डायग्नोसिस बनाओगे? सेकेंड ईयर वाले एब्सोल्युटली देयर इज नो रीजन टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू क्लिनिक्स। कितने जन यहाँ पे रेगुलरली क्लिनिक्स पे जाते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9 जन जाते हो तुम लोग। ठीक है, इवन आई एक्सीडेड 40 लोग जाते। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले लोग क्या कर रहे हैं? कितने सारे नीट के आंसर सिर्फ क्लिनिक जाके अटेंड करो। कितने सारे क्वेश्चन। अभी यहाँ पे किसी को पता है अमोक्सिक्लाव का एग्जैक्ट डिवाइडेड डोज कैसा है? अमोक्सिसिलिन का कितना और क्लावेनिक एसिड का कितना है? टोटल डोज कितना है अमोक्सिक्लाव का? 625। पर दोनों का डिविजन कैसा है? 500 125। तो तुम लोग जब देखोगे तभी सीखोगे। इट इज नॉट जस्ट इंटर्न्स। तुम लोग सब लोग क्लिनिक्स को जाते हो, तुम लोग सब लोग फाइल खोलते हो। मत खोलो फाइल में बहुत सारी चीजें हम लोग खुद भी गलत लिख देते हो। एक्सप्लोर करो ना। यू आर गोइंग टू कम विद डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। या तुम लोग अगर कोई केस दिया ना, यू शुड कम अप विद एटलीस्ट 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सच्ची तुम लोग खुद से पूछो, तुम लोग अगर डॉक्टर बनना है, अगर वो डॉक्टर बनना है ना, तो लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस टू मेक यू सो मच इन क्वेस्ट कि यार इसका क्या हो सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यहाँ पे डॉक्टर बनना है एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, रियली एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर तुम लोग को डॉक्टर बनना है ना, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस अभी से स्टार्ट करो। कोई तुम लोग को डायग्नोसिस नहीं देने वाला। तुम लोग जब खुद की प्रैक्टिस चालू करोगे, नो वन इज गोइंग टू मेक दैट फॉर यू। कोई डायग्नोसिस बना के नहीं देने वाला कि तुम लोग को सिर्फ ट्रीटमेंट देखना है। कोई भी नहीं कर रहा होगा। एंड देयर इज नो AI दैट इज गोइंग टू चैलेंज योर ब्रेन। तो जो बोल रहे ना AI आ गया, अब क्या करेंगे? नथिंग। 1971 से ECG मशीन चालू है बनने के लिए। उसमें रोज फिजिशियन डालते इनपुट डालते कि इसका डायग्नोसिस ऐसे आना चाहिए। 1991 में उसका ट्रायल हुआ था। इट फेल्ड मिजरेबली। इट लिटरली फेल्ड। एक AI मशीन ECG पढ़ने का है ठीक से, बिकॉज what you see is manual readings.
अभी तुम लोग कितने इंटर्न्स होंगे जो पेशेंट का गलत ईसीजी पे एमआई आ जाता है? बहुत सारे ईसीजी आ जाते हैं जिसमें क्वेरी एमआई आ जाता है। तुम लोग क्या करोगे तब? द पेशेंट इज ऑलरेडी टेंस, उसको चेस्ट पेन, पेशेंट को सीकेडी का पेशेंट है, उसको सीवियर हाई ब्लड प्रेशर है, उसको चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक। व्हाट विल बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Aortic dissection. Aortic dissection is a very important thing. CKD के पेशेंट में बीपी इतना ज़्यादा रहता है, we think it कि MI हो सकता है. We start on prophylaxis which is very helpful. Esmolol लेते हैं अपन, वो अपन स्टार्ट करते हैं. Patient goes into such relief, वो बोलता है इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा लाइक. अगर तुम लोग को पता नहीं है कि aortic dissection हो सकता है, तो लोग उसका MI का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे. That patient is tensed up. That patient is already tossing कि उसको इतना ज़्यादा chest pain है. If you all are confused in front of that patient, क्या ठीक है इंटर्नशिप में ठीक है, पीछे में कोई नहीं है तुम लोग के साथ, क्या करने वाले हो तुम लोग? तुम लोग अभी वो सीख सकते हो ना. तुम लोग को लग रहा है that I am exaggerating it, I am not. अब मुझे जब जा रही हूँ ना, I am still scared कि they are going to judge me there, because the competition is cutthroat. When you come to saving lives, it is very important to know your diagnosis. It is very important to ask that extra question. क्या females में कितने लोगों ने menstrual history का history पूछा है ठीक से? There are so many misdiagnosed answers, so many misdiagnosed answers. Patient को PCOS directly वाला diagnosis दे देते हैं और patient का literal diagnosis निकलता है Cushing syndrome. Cushing syndrome. Why? क्यों? हिस्टोटिज्म लिख दिया. मोस्ट कॉमन इंडिया में हिस्टोटिज्म का पास PCOS है, तो कर देते हैं PCOS डायग्नोस. इफ यू ऑल डोंट आस्क दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पेशेंट को एडिमा है, पेशेंट को बीपी की कंप्लेंट्स है, पेशेंट को ज़्यादा फॉर दैट मैटर पेशेंट बताया वो पेटी के ब्रूज रहता है, कोपल ब्रूज रहता है. इफ यू ऑल डोंट आस्क दैट, इफ यू ऑल डोंट एग्जामिन द पेशेंट, हाउ आर यू गोइंग टू डायग्नोस इट? पेशेंट जिंदगी भर के लिए PCOS के आंसर पे जिंदगी काटते रहता है. And all that needed was just one extra question. कोई नहीं पूछता, मैंने भी नहीं पूछा, but I made that point. यार लाइफ में कभी menstrual history मिस नहीं करना, because it is better to ask an extra question than give a misdiagnosis. The second year वाले, this should be a peak year कि तुम लोग गलत diagnosis कर लो, क्या ही होने वाला है? तुम लोग को कोई अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर no one is going to blame you for anything, for that matter even interns. कोई नहीं blame करने वाला है. All you all need to do is ask those questions. अभी मुझे एक पेशेंट याद है, उसको there was a case of first from disease और वही बच्चे को था CTE. I'll never forget that बच्चा, उसका नाम अकबर बोल के है, वो शायद से अभी भी आता होगा. I'll never forget क्योंकि मैंने वो उसका हिस्ट्री लिया. मुझे वो लाइफ टाइम के लिए वो CTE का केस भी याद रहेगा और मुझे वो वर्षम डिसीज भी याद रहेगा. See, basically, if you all attend clinics, तुम लोग को नीट के पहले इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. तुम लोग को रोज होके काम नहीं करना पड़ेगा. एक साल के लिए वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. You all think यार एंजॉय करना है, 3 घंटे से क्लिनिक्स पे डालो. मैं बोल रही हूँ लेक्चर भी तुम लोग ठीक है, जो करना है करो लेक्चर्स में, पर तुम लोग वो पोस्टिंग में खुद से एफर्ट लो. वो पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी तो तुम लोग जाओ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के इंटर्नशिप के टाइम में बेयरली थोड़े लोग आते थे. व्हाट इज स्टॉपिंग यू ऑल? और आंसर आता था हम लोग मैरो कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं, मैरो तुम लोग के रेस्ट ऑफ द टाइम में करना है. तुम लोग ये आंसर अभी बिल्कुल मत दो कि हम लोग मैरो देख रहे हैं. इट मेक्स नो सेंस. मैं अभी बोलती हूँ, मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मैंने लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स खत्म किए थे, बट दोज वर बोले टाइम. मुझे फिर से वीडियोस देखने पड़े, मुझे फिर से थोड़े सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाने पड़े, बिकॉज थोड़ी चीज़ें उस टाइम पे ही करनी चाहिए. यू ऑल कैन नेवर बी अहेड ऑफ टाइम, यू ऑल कैन बी जस्ट ऑन टाइम. रिमेंबर दैट. सबसे पहले मैरो खत्म करके आई मेड दैट मिस्टेक, आई हैड टू रीडू इट. मत करो तुम लोगों को गलती. सेकेंड ईयर में आके फाइनल ईयर की वीडियोस मत देखो. एग्जाम्स जो है ना उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ो, मैथ्यूज लो, सीनियर से मार्क करके लो, वही पढ़ के जाओ, वही रिगर्जिटेट करके. पर जब तुम लोग सच्ची में पढ़ोगे ना वो सब्जेक्ट, दिल से पढ़ो.
बस एग्जाम क्रैक करने के लिए मत पढ़ो तुम, इट विल बी ऑफ नो यूज। आई एड्रेस दिस क्वेश्चन कि इंटर्न्स में कैसे, मतलब इंटर्नशिप में रिविजन कैसे आना चाहिए। बेसिकली देयर शुड बी वन कंप्लीट फर्स्ट फ्रेशन एंड 3 सेट्स ऑफ रिविजन। सबका टाइम अलग रहेगा, यू ऑल कैन नॉट पुट अ टाइम टेबल, बट देयर इज वन थिंग, सितंबर के पहले देयर शुड बी कंप्लीट ऑफ योर फर्स्ट रीड। क्योंकि अगर तुम लोग सितंबर के बाद भी अगर फर्स्ट रीड कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम लोग पे प्रेशर बढ़ जाता है कि यार अब तक ग्रांड टेस्ट नहीं किया है, फिर से ग्रांड टेस्ट में स्कोर खराब आता है, क्योंकि फर्स्ट रीड में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तुम लोग एक सब्जेक्ट फिर से आने के लिए ऑलमोस्ट 3 महीने लग जाते हैं। व्हेन यू ऑल स्टार्टेड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक फिर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तुम लोग को एग्जैजरेटेड लग रहा है, बट दिस इज फैक्ट। 3 महीने के बाद इट इज एब्सोल्युटली जीरो, इट इज एब्सोल्युटली जीरो। तो उसी लिए पीटीआर और डीवीटी बना, दैट इज व्हाई यू ऑल शुड यूज दोस सोर्स। कि तुम लोग का जब 14th डे हो गया ना, थोड़े लोगों के लिए इट इज 28 डेज, आफ्टर 28 डेज यू ऑल बिकम वोलेटाइल फॉर दैट सब्जेक्ट, वे लोग 14 तक। तो आफ्टर एवरी 14th डे आई यूज्ड टू सॉल्व इधर एमसीक्यू या फिर पीटीआर पढ़ लेती, 30 मिनट्स में होने लग गया था पीटीआर। सच बोलूँ तो थोड़े सब्जेक्ट 15 मिनट में भी होने लग जाते, बिकॉज वंस यू रीड इट यू आर विल रजिस्टर इट, एंड नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग वो करोगे द ड्यूरेशन ऑलवेज गोज ऑन रिड्यूसिंग। अगर किसी ने डांस का मॉड्यूल देखा है, डांस क्या है वो बुक का नाम जो तुम लोग को मिलता है, वो बुक जो तुम लोग को मिलता है डांस का कंसेप्ट बुक, उसमें लिखा है लिटरली ये फर्स्ट रीड में तुम लोग का 30 मिनट्स में होना चाहिए, सेकेंड रीड में 15 मिनट्स में होना चाहिए। दोज पीपल आर डूइंग दिस फॉर 25 ईयर्स, बिलीव मी, वो लोग का यही रूल है। एवरी 1 मंथ के बाद वो सब्जेक्ट फिर से आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे 30 मिनट्स में फर्स्ट टाइम होना चाहिए, सेकेंड टाइम में 15 मिनट्स, बिकॉज एग्जाम के पहले यू ऑल कैन नॉट रीड एवरीथिंग। तो इफ यू आर रीडिंग योर पीटीआर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10 days, इट इज ऑफ नो यूज, वो पूरा प्रेशर में होगा। तो अभी से तुम लोग अगर एवरी 14 दिन तुम लोग पीटीआर पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट के लिए, तुम लोग उसमें तुम लोग के मिस्टेक्स ऐड करते हो, बाय द एंड वो 300 पेजेस का बुक जो है ना, वो तुम लोग का लिटरली भगवद गीता बन जाएगा। उसमें सारे मिस्टेक्स होंगे, सारे वोलेटाइल टॉपिक्स होंगे, और एग्जाम के पहले जो पढ़ना है वो हो जाएगा। सो योर फर्स्ट रीड शुड बी कंप्लीटेड बाय सितंबर के बाद विद इन 60 days तुम लोग का सेकेंड रिविजन होना चाहिए, फर्स्ट रिविजन होना चाहिए। अक्टूबर नवंबर खत्म होने तक या फिर दिसंबर मिड तक तुम लोग का फर्स्ट रिविजन हो जाना चाहिए। सेकेंड रिविजन 45 डेज से 50 डेज का होना चाहिए। तो तुम लोग का एग्जाम कितना भी पोस्टपोन हो जाए, इट विल नेवर बी प्रीपोन हो जाए, इट विल नेवर बी बिफोर मार्च, क्योंकि हर एग्जाम के बाद यू ओनली 30 डेज का गैप। अगर आज लास्ट डे ऑफ एडमिशन हुआ है ना, उसके बाद 3 मंथ्स के गैप रहना चाहिए, दैट इज देयर रूल। कि अगर कोई रिपीट कर रहा है उनको 3 मंथ्स में तो पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। तो अगर इस साल का एडमिशन खत्म होकर दिसंबर में हुआ तो तुम लोग का एग्जाम मार्च में ही होगा, तो अगर उसके भी हो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जनवरी। तो तुम लोग अभी उसको गेस मत करो कि यार एग्जाम जनवरी में होगा, मार्च में होगा, मत गेस करो, कुछ नहीं होता वो गेस करते, उनका टाइम वेस्ट होता है, दिमाग पर नहीं हो जाता। अभी से उस पर कुछ फोकस मत करो, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड, दैट इज रीडिंग। और अभी तक अगर तुमने जीटी नहीं दिया है तो आज कुछ मत पढ़ो, जाके जीटी दो, क्योंकि दिस जीटी इज गोइंग टू बी योर बेस लाइन। यार इससे गंदा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, दैट इज योर बेयर मिनिमम। 50 का स्कोर है, ठीक है ना, ठीक है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? नो वन इज गोइंग टू सी योर फर्स्ट जीटी का स्कोर अनलेस योर रैंक 1 हर जगह पे उसके साथ जीटी के स्कोर डालते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा ये। तो कौन देख रहा है तुम लोग का फर्स्ट जीटी का स्कोर? कौन देख रहा है? और अगर तुम लोग उससे बहुत ज़्यादा बैड ट्रिप हो गया ना, दिया जीटी में खराब स्कोर है, दिस इज योर वर्स्ट। यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू, इससे बहुत अच्छा ही होने वाला। हैव दैट फेथ कि यार आज मैं जीटी, आई गिव दिस जीटी, आई मेक श्योर कि इससे बुरा मेरे लाइफ में कभी कुछ नहीं होने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट। If you all don't give that hard touch to yourself, तुम लोग अगर जीटी देने से हिचकिचाते रहो
इवन इफ यू हैव रेड 4 टाइम्स जी तुम लोग का फाइनल स्कोर 400 से ज़्यादा नहीं रहने वाला। आई एम सेइंग दिस विद एक्सपीरियंस। बहुत लोग यही करते हैं, कोई जीटी नहीं देता है और जस्ट एग्जाम जाके दे देते हैं। तुम लोग को पता ही नहीं क्या पूछ रहे एग्जाम में, क्या बनने वाले तुम लोग एग्जाम वाले दिन। कितने लोगों ने जीटी दिया अब तक? मैं स्कोर नहीं पूछने वाली हूँ, कितने लोगों ने जीटी दिया अब तक? और कितने लोगों ने दिया? Even the final years, if anyone has given GTs, first GTs, raise your hands. किसी ने GT दिया अब तक? अब तुम लोग क्यों हिचकिचा रहे हो? What is stopping you from giving that GT? What is it? तुम लोग खुद को क्वेश्चन करो. Is it the fear? पूछते हो अभी अपना 5 डिजिट रैंक का अपन यहाँ पे आया, इससे बुरा होने वाला है क्या? वो इससे बुरा कुछ होने वाला है तो तुम लोग क्यों रुक रहे हो? अब ये मत बोलो इंटर्नशिप में टाइम नहीं मिल रहा है, 3 घंटा तो जीटी दे सकते हो। कितने लोगों ने दिया जीटी? इट इज लिटरली पीक टाइम तुम लोग अब तक तुम लोग का फर्स्ट जीटी देना चाहिए। इफ नॉट नाउ 30 जुलाई के पहले तुम लोग को फर्स्ट जीटी दे देना चाहिए, क्योंकि यू आर रियली नीड एटलीस्ट 8 जीटीज टू एनालाइज योरसेल्फ। बेयर मिनिमम 8। मैंने थर्ड माइनर से स्टार्ट किया था जीटी देना, क्योंकि मेरे पास आई हैड माय एल्डर सिस्टर, आई जस्ट वांटेड टू फॉलो हर, सो आई गेव माय जीटी इन माय थर्ड माइनर। सो दैट वाज माय वर्स्ट स्कूल। इससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं हुआ था। What is stopping you? And I'll give you one very different perspective. अगर वो जीटी में स्कोर गलती से अच्छा हुआ ना, that is going to give you that literally rocket वाला boost. तुम लोग वो मोमेंटम तुम लोग को लाइफ में कुछ भी करके नहीं मिलने वाला। गलती से तुम लोगों ने जो तुम लोग का वर्स्ट स्कोर, अभी जाओ वर्स्ट स्कोर लिखो, उससे अगर तुम लोग आगे निकल गए ना, that is going to give you literally a boost. वो बूस्ट तुम लोग को ऐसे रैंक पे पहुंचाएगा ना तुम लोगों ने जो इमेजिन भी नहीं किया। For me, it was giving that GT. मेरा वो GT में स्कोर था, it was very good, because मैंने सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से किया था। अगर तुम लोगों ने सेकेंड ईयर अच्छे से किया ना, तुम लोग का GT का स्कोर बहुत अच्छा आना ही है। My worst GT score was 420. Yes, because I was very good in my second year subjects. मैंने थर्ड माइनर में मेरा खुद का GT दिया था, पहला GT. I could just excel because मैंने सेकेंड ईयर में रॉबिन्स पढ़ा था, त्रिपाठी पढ़ा था, अनंत नारायण पढ़ा था। सेकेंड ईयर वाले तुम लोग जिस पीक पीरियड में हो ना, तुम लोग पता नहीं है। तुम लोग अगर अभी एक्सेल करोगे ना, यू आर रियली बी ट्रुथफुल एंड ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ कि ये टाइम मैंने निकाला। इफ यू डोंट रीड दैट बुक नाउ, लाइक दैट, फिर से तुम लोग कभी इतना अच्छा बुक नहीं पढ़ोगे। देयर इज नो कंपैरिजन टू रॉबिन्स। अगर तुम लोग को मुझे किसी ने पूछा कि लाइफ में तुझे कौन सा बुक पढ़ना है, इट विल बी रॉबिन्स, नॉट हैरिसन, इट विल बी रॉबिन्स, क्योंकि दैट बुक इज गोइंग टू फॉर्म योर बेस। ऐसा बेस जो तुम लोग वो एक सब्जेक्ट कर लिया ना, तुम लोग 19 सब्जेक्ट एक्सेल करोगे। इधर किसको पैथो के आंसर्स कुछ भी करने आएंगे, थर्ड माइनर वाले। ऐसे कोई कॉन्फिडेंट है कि यार पैथो में कुछ भी आ जाए, आई वोंट गेट इट रॉन्ग? अभी यूनिवर्सिटी की 6 महीना भी नहीं हुआ, वो इतने कॉन्फिडेंट है। वो एक सब्जेक्ट के कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने जीटी दिया था। माइक्रो वॉज माई वेरी मतलब ऐसा स्ट्रेंथ था कि मैंने जीटी में शायद से मैक्सिमम एक गलत किया होगा हर टेस्ट में, इससे ज़्यादा नहीं। दैट इज वाई एम्फसाइजिंग कि सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तुम लोग अगर इवन सेकेंड ईयर पढ़ के जीटी दोगे, तुम लोग का स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ये तुम लोग को पता चलेगा जब तुम लोग किसी तुम लोग के बाहर के कॉलेज वाले से पूछोगे। वो लोग का यही एक एडवांटेज है, उनके सीनियर्स उनको रॉबिन्स पढ़ने बोलते हैं, उनके सीनियर्स उनको रॉबिन्स पढ़ने बोलते हैं। मेरे लिए ये था लॉकडाउन में सुमेर सर ने बोला था कि रॉबिन्स पढ़ना है। इफ समवन इज एडवाइसिंग यू समथिंग दैट इज विद योर एक्सपीरियंस, इट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू एक्सेल। तुम लोग को लिटरली लग रहा होगा कि आई एम एग्जैजरेटिंग इट, पर एक लौता पैथो तुम लोग का मेडिसिन स्ट्रॉन्ग करेगा, सर्जरी स्ट्रॉन्ग करेगा, फॉर दैट मैटर
पाथ हो गया इवन 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 60 क्वेश्चन तुम लोग अगर यहीं पे निकल जाते हैं, लिटरली व्हाट इज स्टॉपिंग द सेकंड ईयर फ्रॉम डूइंग? So my worst score was 420. That is because मैंने सेकंड ईयर अच्छे से किया। For someone who has not done it yet, जो अपना पहला GT देने वाला है, this is going to be your worst score. इससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं आने वाला है। तुम लोग जब एनालाइज करोगे ना, तुम लोग के worst 3 subjects should be changing, हर टाइम चेंज होने चाहिए। That means you are progressing. अगर तुम लोग की लास्ट 3 सब्जेक्ट हमेशा सेम है, तो तुम लोग अपने गलतियों को इम्प्रोवाइज नहीं करते। I didn't realize this till 6 months of my giving GT final year internship वाला year. मेरा हमेशा नीचे गवर्नमेंट होता ही था। I didn't address it. पर तुम लोग अभी करोगे। That should change. You all should change. तुम लोग को हंस I don't know what is funny for you all, but this is not funny. जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, जब सामने वाले लोगों का सीट लग जाएगा, you will regret it. यार क्यों नहीं लिया वो एक्स्ट्रा स्टेप? काश उस दिन भी ले लेते हम लोग। I was sitting there, exactly there, जब सूर्या सर ने वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर के वहाँ पे केस आया था, एक 12-year-old boy comes with a history of fracture of supracondylar humerus, और सर ने पूछा थोड़ी देर में उसका हम लोगों ने palm टच किया, it went cold. What is your diagnosis? What is your diagnosis? Compartment syndrome. Yes. It was a case of compartment syndrome, और सर ने वो OT अटेंड की क्योंकि कोई और रेसिडेंट नहीं था तभी, सर ने वो OT अटेंड की। If I remember that case, why should not you all remember it? इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस दिन थे उस दिन। But if you all pay keen attention to what is said, you all will never forget these things. तुम लोगों ने जो केस देखा हो ना, वो लाइफ में हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। Sometimes you will even not forget the patient's name. क्योंकि ऐसे केस देखते हो तुम लोग। अभी अपन पूछ रहे थे जिस्ट का सीरोटाइप क्या है, सीडी मार्कर क्या है जिस्ट का। केसेस देखा है सब लोग, बहुत लोगों का सर्जरी हुआ है। जिस्ट का सीडी मार्कर क्या है हाथों में, CD117। और स्पेसिफिक क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक डॉग जीन म्यूटेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। They are not going to ask you any high-fi question, बहुत दूर से कुछ लगा के नहीं पूछने वाले। वो लोग यही क्वेश्चन पूछने वाले, सिर्फ घुमाएंगे थोड़ा, but they don't want to ask you something that is not needed. जिस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, that is why they are focusing on जिस्ट। अब जिस्ट का मैनेजमेंट पूछेंगे, अगले साल जिस्ट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे पूछेंगे। वो लोग सिर्फ वही टॉपिक को स्टिक करने वाले। My emphasis on जिस्ट इज कि तुम लोग वही टॉपिक अच्छे से करो, क्योंकि they are going to ask you pneumonia, they are going to ask you PERB 65 का स्कोर हर साल। अभी कर लो ना। कितने लोगों ने निमोनिया का केस देखा? फॉरन मैटर शायद से सब लोगों ने निमोनिया का केस आज तक तो देखा ही है। कितने लोगों ने वो एक्स्ट्रा माइल लिया है ये करने के लिए कि कैसे ट्रीटमेंट लेते हैं? व्हाट इज PERB 65 स्कोर? कन्वर्जन काहीतरी असतं। C for conversion, U for काहीतरी असतं। ब्रॅडिकार्डिया 65 काहीतरी होतं। एक्सीलेंट, सब लोग उसके लिए ताली मारें। ये क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा, मैं आज भी बोलती हूँ, ये क्वेश्चन तुम लोगों को नीट में आने ही वाला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना, लिटरली वो आईने में आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी लिख लो तुम लोग, तो अब 65 का स्कोर आने वाला है, या फिर उसका ट्रीटमेंट आएगा या फिर उसका डायग्नोसिस आएगा। But this is their pattern. They are shifting towards clinical question. If you all don't take that extra mile, तुम लोग अगर वो क्लिनिक्स पे अभी ध्यान नहीं दोगे, तुम लोग अगर वो अभी डायग्नोसिस नहीं करोगे, तो यही होगा। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि लास्ट में एक साल में पढ़ लेंगे। कितना ही पढ़ोगे तुम लोग? 19 सब्जेक्ट्स, डिवाइड एंड रूल का गेम इसीलिए बना है। फर्स्ट ईयर में जो है बस एक्सप्लोर करो कि क्या करना है, कैसे करना है, और सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो। थर्ड माइनर वाले अभी तो तुम लोग का शायद से इवन चेंज हो गया। यू ऑल जस्ट हैव कम्युनिटी मेडिसिन का एग्जाम।
फॉरेंसिक एंड कम्युनिटी मेडिसिन। तो तुम लोग बहुत अच्छा कर लो ना, वही तुम लोग का भी एक्स्ट्रा 1.5 साल मिल गया टू मेक योर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। अभी खत्म करो, ऐसा मत करो कि यार ये भी ऑप्शन अगले साल के लिए चला गया है, अभी नहीं देखते उसका वीडियो। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टार्ट विथ ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। वो लोग पार्टनर इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि वो लोग को तुम लोग का बर्डन कम कर रहा है। दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ रकस कि ये लोग पढ़ना छोड़ दे। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि ये पैटर्न एम्स में फॉलो करते हैं। एम्स में दे हैव फाइनल ईयर में थर्ड माइनर के सब्जेक्ट्स। दे डोंट हैव अ थर्ड माइनर का एग्जाम, दे हैव फाइनल ईयर का एग्जाम। सो दिस पीरियड वाज गिवन फॉर देम टू क्रैक यूएसएमएल। दे आर इन अ रॉन्ग नोशन कि ये अपना बस बोझ हल्का करने के लिए किया है, ये उन्होंने यूएसएमएल के लिए किया है। उधर के सब लोग यूएसएमएल क्रैक करते हैं। वो 1 साल में उनका पीरियड होता है। दे हैव टू गो देयर, डू देयर टेस्ट, समथिंग कॉल्ड देयर रोटेशन वाला उनका शिफ्ट होता है वहाँ पे। तो वो लोग वहाँ पे एक कॉलेज में सिलेक्ट होते हैं। वो कॉलेज में सिलेक्ट होके वो लोग ऑलमोस्ट 4 वीक्स का पूरा रोटेशन एक्सपोजर होता है। उस रीज़न के लिए थर्ड माइनर जो है उन्होंने फाइनल ईयर में शिफ्ट किया था। यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड माइनर का एग्जाम जो है फाइनल ईयर में जा चुका है, अभी मैं टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, दे वांट यू टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू क्रैक यूएसएमएल टू गो देयर, पर तुम लोग वही अटेम्प्ट करो और आईएनएससीटी के लिए प्रिपेयर करो। क्यों नहीं? शायद से इसके पहले किसी ने कॉलेज में आईएनएससीटी को इतना प्रमोट नहीं किया था। आई एम डूइंग इट वेरी मच, क्योंकि मुझे चाहिए कि दिस इंस्टीट्यूट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 50 ऑफ देम इन नेक्स्ट 10 years। 50 लोगों को तो आईएनएससीटी क्रैक करना ही है। तुम लोग को मजाक लग रहा है आज, बट आई रियली हैव दैट फेथ। तुम लोग अगर वो डालोगे ना वो होगा। आई रियली हैव दैट फेथ। तुम लोग को when you will say कि I am from AIIMS Delhi, I am from PGI Chandigarh, that immense pleasure, nothing will beat it। मैं आज भी जब बोलती हूँ ना मुझे PGI चंडीगढ़ मिला है, they are like shit PGI चंडीगढ़। That is the expression you will get। The people around you who are from medical fraternity, they will respect you। किसी ने मुझे नहीं पूछा from which college you have done your UG, किसी ने नहीं। Once you get that tag, no one is going to ask you UG किधर से। I said it myself because I wanted to create that awareness। यार कोई प्राइवेट कॉलेज से भी जा सकते हो। I had no intention of gaining any sympathy, but प्राइवेट कॉलेज से भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं। क्या डिफरेंस है हम में और उनमें? इधर कितने लोग वो स्टिग्मा में अभी भी कि यार आईएनसीटी नहीं होगा। मेरा यहाँ पे आने का यही एक मोटिव था कि सबको आईएनआई देने लगाना। मतलब तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग को आईएनआई देना। तुम लोग को लग रहा होगा कि यार क्या टाइम पास चालू है, बट दिस विल चेंज योर लाइफ एंड इट विल सर्टेनली गोइंग टू चेंज माइंड सून। मतलब आई एम हेड ऑन हील्स फॉर इट। यार कब स्टार्ट होगा, कब जाऊंगी, क्या क्या सीखूंगी। डू एक्सप्लोर आईएनआईसीटी अभी से, इट इज बेस्ट टाइम। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले तुम लोग आईएनआई के अभी, मतलब there's nothing extra you all are doing, you all are just reading Roberts, त्रिपाठी, आनंद नारायण, और कुछ नहीं, और कुछ अलग नहीं है इससे। किसी और को कोई डाउट पूछना है? So you want to ask when you should shift to finally when you should shift to your last? See, 3 reads should be from your notes. So first read, first revision, second revision. उसके बाद shift to. But make sure वो 14th day पे तुम लोग वही source पढ़ रहे हो. If you are using Marrow revision notes, every 14th day read those notes. वरना ऐसे हो जाएगा कि थर्ड रीड विल बी और फ्रेश रीड अगेन। तो उससे बेटर है 14th डे पे मानो का रिवीजन नोट्स यूज करना एंड योर थर्ड रिवीजन विल बी फ्रॉम दैट बुक।
क्योंकि every 14th day पे you add something. You will always add something. जब तुम लोग GT देना सीखोगे ना, तुम लोग को पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते. There's always a case of hyperkalemia. वो लोग घुमा फिरा के पूछते. ECG देंगे. अगर ये सेरेब्रस का कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे, या फिर ट्रॉमा का हिस्ट्री देंगे, या फिर एक्शन पोटेंशियल देंगे. There's always a case of hyperkalemia. अभी कर लो तुम लोग, hyperkalemia आने वाला है. So once you start reading your revision notes, once you have solved your GTs, तुझे पता है कि ये ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं. You make sure to add those to your revision notes. So when your third read comes, you will have a concise thing. मतलब I have one very basic principle. सारे notes नहीं याद होने वाले. सारे notes नहीं याद होने वाले. किसी को भी नहीं होते. तो उसी लिए वो revision जो notes होता है ना, उस पर ऐड करते जाओ. अभी से ऐड करते जाओ, ताकि फाइनल जब रीड आए ना, तो तुम लोग वो बुक में सब कुछ है. Even if it is just 300 pages या 400 pages का बुक, you will have that content कि इसमें सब कुछ है. वो फोमो नहीं रहेगा कि यार नोट्स इतना पढ़ लिया, नोट्स पढ़ के अभी इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये जस्ट 400 पेजेस का है. तुम लोगों को फोमो नहीं रहेगा बिकॉज यू हैव एडेड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू दैट नोट्स. इसीलिए 14th डे का रूल है. बाय 14th डे यू मस्ट हैव गिवन in first 3 months you just give 1 GT per month. By next 3 months you should give every fortnightly. मारो की GTs उसी लिए वैसा बने कि स्टार्टिंग में it is just once a month. उसके बाद there are fortnightly GTs. तो always follow that GT का. अभी शायद से एक GT आया 11 to 15 के बीच में. What is stopping you from giving that? तो once you come to 14th day तो तुम लोगों ने ऑलरेडी GT दिया रहता है. तुम लोग को पता है ये टॉपिक में यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहे. यू एड इट टू योर नोट्स एंड देन रीड इट. सो व्हेन यू आर डूइंग अ थर्ड रिविजन यू विल हैव अ कंप्लीट बुक रेडी. वंस यू डू दैट बुक you will know to you will get multiple number of GTs henceforth because reading those 400 pages will be easier. You will read it more often, you will be more content, you will gain a confidence कि यार सारे subjects आते हैं. So by third revision start using. So कुछ पूछना जिसको जाना बोले जा सकते हो, सच्ची जा सकते हो. I have no problem. तो तुमको अगर डाउट रहा तो पूछो. If you don't have, you can leave because this is your precious period. Don't waste it by listening to someone else's queries. अगर तुम लोगों को queries नहीं है तो you all can leave. Read in that period. I am not going to stop here because every minute, at least for interns, is very important. अगर तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है तो you all can leave. If you all have doubt, address it. और पता क्या है पर मैं तो पता है